اور خبروں کی شروعات عراق سے کریں گے، جہاں حکومت مخالف احتجاج میں ایک مرتبہ پھر شدت آ گئی ہے۔ کل رات سے آج صبح تک ہوئے احتجاج کے دوران مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں عراق کے 3 شہروں میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ بغداد اور باقوبہ میں 2 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ کربلا میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ دوسری جانب بغداد کے انتہائی سیکیورٹی والے گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے کے پاس 2 یا 3 راکٹ داغے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت، سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہرہ ہوا پرتشدد۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں پیر کی رات سے منگل کی صبح تک حکومت کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران شدید تصادم ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک نوجوان صحافی بھی شامل ہے، جو مظاہروں کی رپورٹنگ کر رہا تھا۔ حکومت نے پرتشدد مظاہروں کے سبب بغداد کے مختلف علاقوں کی ناکہ بندی کا حکم دیا ہے۔ سیکیورٹی اور طبی عملے نے تصدیق کی ہے کہ بغداد کے سناک پل اور تیران اسکوائر پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شل داغے گئے اور ساتھ ہی ساتھ گولیاں بھی فائر کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 21 سالہ صحافی یوسف عبدالستار بھی ان مظاہروں کی رپورٹنگ کے لیے بغداد میں تھے اور وہ بھی اس دوران ہلاک ہو گئے۔ حکومت کے خلاف ناراضگی کی وجہ سے ان مظاہروں کا آغاز گزشتہ اکتوبر میں ہوا تھا، لیکن بغداد میں ہوئے امریکی حملے میں ایرانی جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے سبب ان مظاہروں کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ لیکن پیر کی رات ایک بار پھر پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ پیر کے روز کربلا اور نجف میں بھی حکومت کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے تھے۔ اس دوران سیکیورٹی حکام اور عینی شاہدین نے بتایا کہ بغداد کے انتہائی سیکیورٹی والے گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے کے قریب کم سے کم 2 راکٹ آ کر گرے۔ ان حملوں کے فوری بعد سائرن کی آوازیں سنی گئی اور سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب جنوری کے اوائل میں ایران کے جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے بعد سے گرین زون کے علاقے میں کئی بار راکٹ فائر کیے جانے جیسے واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کن گروہوں کا ہاتھ ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ امریکی سینٹ میں اب سے کچھ دیر بعد صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے مواخذے کے خلاف وائٹ ہاؤس نے تفصیلی دلائل پر مبنی رپورٹ امریکی سینٹ میں جمع کرا دی ہے، جس میں مواخذے کے لیے ایوان نمائندگان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو ان الزامات سے بری کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مواخذہ کے تعلق سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے دلائل میں کہا گیا ہے کہ ایوان نمائندگان قابل مواخذہ جرم کی نشاندہی میں ناکام رہا۔ صدر کے مواخذے کی کارروائی آگے بڑھانے کے لیے طاقت کا غلط استعمال کی غلط تشریح کر کے اسے بڑے جرائم اور بدعنوانی سے جوڑا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ محض پالیسی اختلافات پر مبنی اس کوشش سے مستقل بنیادوں پر صدر کے مواخذے کے لیے کمزور شواہد کو بنیاد بنانے کی روایت ڈال دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جمع کرائے گئے دلائل میں کہا گیا ہے کہ کانگریس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام بھی غیر سنجیدہ اور خطرناک ہے، حالانکہ صدر نے قانونی طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنا حق استعمال کیا تھا۔ دلائل میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے 3 سینئر مشیروں کو ایوان نمائندگان میں گواہی دینے سے روک دیا تھا، کیونکہ انہیں استثناء حاصل تھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مواخذے کی کارروائی کے دوران ناقابل تلافی غلطیاں کی گئیں۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ پورے ہاؤس کی منظوری کے بغیر ہی مواخذے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ صدر کے دفاع میں دیے گئے دلائل میں کہا گیا ہے کہ ایوان نمائندگان نے ہاؤس کے تہخانے میں خفیہ سماعتوں سے مواخذے کی کارروائی شروع کی اور اس دوران صدر کو صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم رکھا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایوان نمائندگان کے انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا ہے
एडम शेफ ये कहानी घड़ने में पेश थे। दलाइल में कहा गया है कि ऐवान नुमाइंदगान ने हक़ाइक़ तक रसाई के बजाय किसी न किसी तरह सदर के मुआखज़े का जवाब तलाश करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान ने सदर पर महज मफरूज़ों की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो बाइडन के बेटे के खिलाफ तहकीकात के एवज़ यूक्रेनी सदर को इमदाद रोकने की धमकी या मुलाकात का लालच दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि इल्ज़ामात के हक में ऐवान नुमाइंदगान ठोस शवाहिद पेश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर के खिलाफ इल्ज़ामात की फहरिस्त की बुनियाद ही गलत थी, लिहाजा सेनेट जल्द अज जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए सदर को इन इल्ज़ामात से बरी करे। ख्याल रहे कि अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने 193 के मुकाबले में 228 वोटों से सदर के मुआखज़े की मंजूरी देते हुए मामला अमरीकी सेनेट के सुपुर्द कर दिया था। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है और गालिब इम्कान यही है कि यहाँ सदर को इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप पर बड़ा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 2020 के सदारती इंतखाबात में अपने मुतवक्का हरीफ जो बाइडन की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर फोन करके दबाव डाला था कि वो बाइडन के साहिबजादे हंटर बाइडन के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात कराएं। सदर ट्रंप पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने ताउन न करने पर यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद रोकने की भी धमकी दी थी। सदर ट्रंप पर दूसरा इल्जाम यह है कि उन्होंने अपने खिलाफ होने वाली तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की। ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का मौक़िफ़ है कि सदर ट्रंप ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती को खतरे में डाला और ये इनके मुआखज़े के लिए काफ़ी है। सदर ट्रंप अपने खिलाफ इल्ज़ामात को धोखा और इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए इसे मुस्तरद करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 50वें आलमी इक़्तिसादी फोरम का स्विस शहर दावोस में इस एजेंडे के साथ आगाज हुआ है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि आलमी रहनुमा इस बहरान से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ऐसे वक्त फोरम में शिरकत के लिए पहुंचे हैं जब अमरीका में उनके मुआखज़े की कार्रवाई सुर्खियों में है। दावोस इजलास में आलमी शोहरत याफ्ता 17 साल ग्रेटा थनबर्ग भी शिरकत कर रही हैं, जिनकी सदर ट्रंप गुज़िश्ता दिनों नुक्ताचीनी कर चुके हैं। लिहाजा दावोस फोरम में सभी की निगाहें ट्रंप और थनबर्ग पर मरकूज है। आलमी शोहरत याफ्ता माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि दुनिया को दरपेश संगीन माहौलियाती खतरात के हवाले से शऊर उजागर करने की इनकी कोशिशों के बावजूद इस मसले से निपटने के लिए आलमी सतह पर कुछ भी नहीं किया गया। वो स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में दुनिया की सरकर्दा कारोबारी और सियासी शख्सियात से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि माहौलियात की तबाही से निपटने में साइंस और नई नस्ल की तशवीश को मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले का ताल्लुक हमसे, हमारी आइंदा नस्लों और उनसे है जो आज इससे मुतासिर हो रहे हैं। हमें साइंस पर बात करनी होगी। थनबर्ग ने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि कार्बन के अखराज को सिफर करना दुनिया का टारगेट होना चाहिए। We don't need a low carbon economy. We don't need to lower emissions. Our emissions have to stop if we are to have a chance to stay below the 1.5 degree target. And until we have the technologies that at scale can put our emissions to minus, then we must forget about net zero. We need real zero. Because distant net zero emission targets will mean absolutely nothing if we just continue to ignore the carbon dioxide budget that applies for today, not distant future dates. If high emissions continue like now, even for a few years, that remaining budget will soon be completely used up. 17 साल तालिबा ग्रेटा थनबर्ग का ताल्लुक स्वीडन से है। उन्हें पिछले साल अमेरिकी रिसाले टाइम मैगजीन की तरफ से साल 2019 की पर्सन ऑफ द ईयर का एजाज दिया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम मैगजीन के इस ऐलान का मजाक उड़ाया था। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में इसे मज़ाक़खेज़ करार दिया था और ग्रेटा थनबर्ग को मशवरा दिया कि उन्हें अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए।
اس سے قبل ستمبر میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی امریکی صدر اور گریٹا تھنبرگ کے درمیان سوشل میڈیا پر نوک جھونک ہوئی تھی۔ اس اجلاس میں گریٹا تھنبرگ نے اپنی جذباتی تقریر میں عالمی رہنماؤں پر زور دیا تھا کہ اگر انہوں نے اس عالمی ماحولیاتی مسئلے کو نظر انداز کیا تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ داوس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں عموماً تقریباً 3000 لوگ شرکت کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ پچھلے سال اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس سال ان کی تقریر ایک ایسے وقت پر ہوگی جب امریکی سینٹ میں ان کے مواخذے کی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق اس موقع پر صدر ٹرمپ جن حکومتی سربراہان کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے ان میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ وینیزویلا کے وزیر خارجہ جارج ایریازا ایران کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ تہران میں ایریازا نے صدر حسن روحانی سے ملاقات کی۔ جارج ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ ایران دورے پر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے بھی دو طرفہ امور پر گفتگو کی۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق وینیزویلا کے وزیر خارجہ نے القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل پر اظہار تعزیت بھی کیا، اور ان کے سرکاری میڈیا کے مطابق جارج کے ایران دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے رشتوں کو استحکام بخشنا ہے۔ جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے فوجیوں کو ابنائے ہرمز بھیجا جا رہا ہے۔ حکام کے حکومت کے اس اقدام کو امریکی دباؤ کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے۔ سیول میں لوگوں نے حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملک پر ابنائے ہرمز میں فوجی بھیجنے کے لیے امریکہ نے جنوبی کوریا پر دباؤ ڈالا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایک خود مختار ملک ہونے کے ناطے جنوبی کوریا پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس طرح ملک کے فوجیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے اس اقدام سے باز رہنے کو کہا ہے۔ 파병은 미국의 강압에 의한 것입니다. 지금 호르무즈해협에서 위험이 높아지는 것은 미국의 이전 패권 정책 때문이죠. 그렇기 때문에 이런 미국의 요구에 따른 파병은 우리 주권국가로서 해서는 안 될 일일 뿐만 아니라 우리 젊은이들을 희생시키는 일이기 때문에 이 파병 결정을 철회할 것. تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کو بھی شہنشائیت کو اکھاڑ پھینکنے کی سازش کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد فیوچر فارورڈ پارٹی کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن پارٹی اب بھی تحلیل ہی رہے گی کیونکہ الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ابھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ پارٹی پر الزام ہے کہ اس نے اپنے لیڈر سے بھاری قرض لیا تھا۔ فیوچر فارورڈ پارٹی 2018 میں فوجی اقتدار کے دور میں قائم ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت میں قابل لحاظ اضافہ ہو گیا تھا۔ گزشتہ برس کے انتخابات میں بھی پارٹی نے اچھا مظاہرہ کیا تھا، جس نے حکومت کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ امریکہ اور طالبان میں امن معاہدہ مذاکرات کے سلسلے میں ایک اور کڑی کا اضافہ ہوا ہے۔ قطر میں افغان طالبان کے وفد نے ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد اور افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر سے ملاقات کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ پیر کی شام ہونے والی ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہیل شاہین نے بتایا کہ طالبان رہنماؤں امیر خان متقی اور عباس انتکزئی بھی ملا برادر کے ہمراہ تھے۔ اس سے قبل یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ امیر خان متقی کو طالبان مذاکرات کاروں کی ٹیم سے خارج کر دیا گیا ہے۔ تاہم سہیل شاہین نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ پیر کو ہونے والے مذاکراتی عمل میں شریک تھے۔ سابق افغان اٹارنی جنرل مولوی جلال الدین شنواری کے مطابق فریقین نے مذاکرات کے دوران امن معاہدے کی تاریخ اور جگہ کے انتخاب پر بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امن معاہدے کی تاریخی تقریب کے موقع پر علاقائی ممالک اور اس عمل میں شامل سہولت کاروں کو دعوت دی جائے گی۔ اس سے قبل افغان طالبان نے کہا تھا کہ انہوں نے امن معاہدے کے لیے ماحول سازگار بنانے اور امریکی فوج کے پرامن انخلا کے لیے افغانستان میں اپنی کارروائیاں محدود کر دی ہیں۔
सुहेल शाहीन ने उम्मीद जाहिर की थी कि जनवरी के अख्ताम तक अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। साबिक अस्करी रहनुमा हाजी दीन मोहम्मद का कहना है कि अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे के बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। वाज़ेह रहे कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का सिलसिला हालिया दिनों में दोबारा शुरू हुआ है और तालिबान वफ़द ने अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहिमत ज़ुल्म खलीलज़ाद से भी हालिया दिनों में मुलाकातें की थीं। अलबत्ता माहिरीन अमरीकी फ़ौजी हुकाम के साथ तालिबान के बराह रास्त मुज़ाकरात को अहम करार दे रहे हैं। ख्याल रहे कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात गुज़िश्ता साल के आगाज़ पर शुरू हुए थे। मुज़ाकरात के कई दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुए, जिनमें जंगबंदी समेत अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला पर बातचीत हुई। अलबत्ता गुज़िश्ता साल सितंबर में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बढ़ने का उज़्र पेश करते हुए मुज़ाकरात का सिलसिला मुअत्तल कर दिया था। अमेरिका का ये मौक़िफ़ रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में अमरीकी और अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद करें। ताहम तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका और इत्तेहादी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकल जाएं। अफ़गानिस्तान में तकरीबन 18 साल से जंग जारी है। अमरीकी हुकाम का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो अफ़गानिस्तान से इनखला चाहते हैं, लेकिन इससे कबल तालिबान को ये ज़मानत देनी होगी कि वो आइंदा अफ़गानिस्तान में अलकायदा या दीगर अस्करी तंजीमों को पनपने नहीं देंगे और ये भी ज़मानत देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। काबिल गौर है कि तालिबान निस्फ से ज़्यादा अफ़गानिस्तान पर असर रसूख रखते हैं। अमेरिका की भी ख्वाहिश रही है कि तालिबान अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके मुल्क के आइंदा के सियासी मुस्तक़बिल पर बातचीत करें, लेकिन तालिबान काबुल हुकूमत को अमेरिका की कठपुतली करार देते हुए इससे इनकार करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर चीन से है, जहां वुहान सूबे के तिब्बी हुकाम ने निमोनिया का बायस बनने वाले वायरस से एक और मरीज के हलाक होने की तस्दीक कर दी है। इस तरह इस पुरस्रार वायरस से हलाक होने वाले मरीजों की तादाद 4 हो गई है। यह भी बताया गया है कि यह वायरस इंसान से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। वुहान में 15 तिब्बी एहलकारों में भी इस वायरस की तशखीस हुई है। आज भी वुहान के अस्पतालों में निमोनिया में मुब्तला नए मरीज लाए गए। वुहान के अलावा निमोनिया में मुब्तला अफराद के क्लिनिकल टेस्ट बीजिंग, शंघाई और शेंजेन शहरों में भी मुस्बत आए हैं। चंद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वहीं चीन ने मंगल को तस्दीक की है कि वो कोरोना वायरस फैलने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत हंगामी मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा, जिससे ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान शुआंग ने कहा कि चीन इजलास के दौरान दीगर ममालिक और एजेंसियों के साथ मालूमात शेयर करेगा। शुआंग ने बीजिंग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन इस वबा से निमटने और मुश्तरका तौर पर इलाक़ाई और आलमी सतह पर सेहत के ताल्लुक से दूसरे ममालिक के साथ ताउन को मज़ीद उस्तवार करेगा। 冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，中国政府高度重视，对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作进行了全面的部署。同时，本着公开透明以及对全球卫生安全高度负责的态度，中方有关部门及时向世卫组织、有关国家以及港澳台地区通报了。 मारूफ सिख सियासी रहनुमा राधेश सिंह उर्फ टोनी भाई ने अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान छोड़ दिया है। राधेश सिंह ने साल 2018 के आम इंतखाबात में अपने आबाई इलाके पेशावर से हिस्सा लिया था, जिसके बाद इन्हें धमकियां मिलना शुरू हुई थी। उन्होंने पेशावर को खैरबाद कहकर लाहौर में रिहाइश अख्तियार की थी। आपको बता दें कि राधेश सिंह ने 10 जनवरी को लाहौर पुलिस को एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें कहा गया था कि वो अपने बेटे के हमरा 7 दिसंबर को शाम के वक्त मोटरसाइकिल पर कच्चजेल रोड से गुजर रहे थे कि 4 नामालूम लड़कों ने इन्हें रोका और इन पर तशद्दुद किया। लखनऊ में शरीयत कानून की हिमायत में रैली से अमित शाह ने खिताब करते हुए कहा है कि जितना चाहे एहतजाज हो, शरीयत कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने अपोजिशन को इस कानून पर बहस करने की चुनौती दी। नागरिकता संशोधन कानून लेकर, सीएए लेकर आए,
और इस सीए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काऊ 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 कर रही है। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ के घंटाघर पर भी खवातीन का एहतजाज जारी है। शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन जुमे से धरने पर बैठी हैं। पुलिस के जरिए धरने पर बैठी खवातीन के कंबल जब्त किए जाने का भी मामला सामने आया था। खवातीन का मुतालबा है कि हुकूमत शहरियत कानून को फौरी वापस ले। मांगे तो साफ साफ है, पूरे हिंदुस्तान से साफ साफ आवाज़ आ रही है कि हमारा सीए, एनआरसी, एनपीआर के विरुद्ध हमारा ये धरना है और यह अनिश्चितकालीन धरना है। हम तब तक धरना देते रहेंगे जब तक कि कोई सरकार का आदमी हमसे आकर बात नहीं करता। सर, धरना देना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। सर, अगर वो कहीं पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमको लिखा हुआ दिखा दें कि आप धरना नहीं दे सकते हैं, तो हम कहते हैं आप सारे को उठा लो, एक तरफ से सबको उठा लो और जेल भरो, आंदोलन शुरू करो। तुम अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम लोग एफआईआर से डरने वाले नहीं है, जेल से डरने वाले नहीं, गोलियों से डरने वाले लोग नहीं। तो हम फुल्ली मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के यहाँ आए हैं कि गवर्नमेंट ने जो पूरे इंडिया में औरतों पे, बच्चों पे जुल्म ढाया है, जो भी जुल्म ढाया है वो जुल्म मेरे ऊपर भी ढाया जाएगा। तो एक एफआईआर नहीं, 50,000 एफआईआर ये करा लेंगे, इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम है, रात में लेडीज जगती है, यहाँ पे वॉशरूम एक तो काफ़ी दूर पब्लिक, वो 5-5 रुपए लेते हैं और दूसरे ताला लगा दिया था और यहाँ पे लाइटें बंद करी जाती हैं। और देखिए हम लोग इतने खुले में बैठते हैं, कम्बल भी पुलिस उठा ले गई थी। हम लोगों को इस तरह से परेशान कर दिया जाता है, इतना परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डटे हैं और डटे रहेंगे और अपनी इसी तरह से लड़ते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट अपना एनआरसी वापस नहीं लेती है। वो जितना भी परेशान कर ले, जितना भी हम लोगों को यहाँ पर तकलीफ देनी है दे दे, लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और डटे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। रात में जो हमारी बहनें थी वॉशरूम को लेके इस कदर उन्हीं ने अजियत सही है, इधर उधर जा रही हैं। आप सोच ली औरतों के लिए कितनी बड़ी ये दिक्कत है। और इवन जिन्हीं ने हमारे सपोर्ट में खोले भी, हम नाम नहीं लेंगे, आपने उन रेस्टोरेंट का या आसपास वालों को आपने वो भी बंद करवा दिया, फोर्सली सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिक नीड है, आप उन्हें कैसे रोकते हैं? इतना गंदा काम। तो आप लोग के मीडियम के से अगर ये बात पहुंचती है इस मीडियम से तो प्लीज़ ये पहुंचाइए कम से कम। वहीं मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटियां लखनऊ में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ हो रहे एहतजाज में शामिल हुई थीं, जिसके बाद दफा 144 के खिलाफ वर्जी के इल्जाम में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की इस कार्रवाई पर मुनव्वर राना ने कहा कि अगर खवातीन का जमा होना गलत था तो अमित शाह की रैली में लाखों लोगों की शिरकत भी जुर्म है। ये रवैया अच्छा नहीं है। 144 का जो तमाशा बताया जा रहा है, 144 जब नहीं था तब ये एजिटेशन शुरू हुआ था, इसके बाद 144 लगाया गया। ठीक है, 144 में अगर ये गुनाह कर रही थी तो फिर ये भी मान लेना चाहिए कि जब जब किसी शहर में कोई शाह आता है तो फ़कीर और उसके बेटे बेटियां गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वो उन्हें परेशान किया जाता है। तो यहाँ भी दिल्ली से एक शाह आए और उनके आने की खुशी में, उनके आने की मोहब्बत में, उनके आने की वजह से हुकूमत ने दिखाने के लिए हमारी बेटियों के नाम एफआईआर में दर्ज करवा दिए। ये सिर्फ लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है कि वो लड़कियां जो शादीशुदा हैं, जो अपने शौहर के साथ रहती हैं, उनके नाम के साथ हमारा नाम लगाकर बाकायदा सब अखबारों में सब दिया जा रहा है। तो ये अफसोस की बात है और मुझे शर्म आती है कि मैं इस मौजू पर मुझसे गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 500, 600, 400, 2000 लड़कियों का बैठना गलत है तो फिर ये जो 1 लाख का मजमा आज
अमित शाह के आने पर यहाँ लगाया गया है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। और अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि इस मुल्क में मोदी जी की हुकूमत नहीं है, हिटलर की हुकूमत चल रही है। जहाँ जो हिटलर चाहेगा, हिटलर के आदमी चाहेंगे वो होगा। अगर ये नहीं है, अगर यह ईमानदारी है, तो अगर मेरी बेटियों के खिलाफ FIR हो रही है तो फिर गृह मंत्री के खिलाफ भी इसी लखनऊ में FIR करने के बाद ये साबित कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान राम का मुल्क है, यहाँ इंसाफ बराबर से किया जाता है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।